Hello students, in previous video we have already discussed about some basic tags of HTML such as HTML tag, head tag, title tag and body tag. So in this video I am going to show you how can you use these tags on HTML documents. So let's start. First of all, for coding I have to open a text editor which is Notepad. And here you can see Notepad window has opened now. Here you can see this is a Notepad window which is open now. Before start of coding, save this document first. आपको ये document पहले save करना चाहिए. Okay, so I'm going to save it. Here you can see this is the file tab. Click on this button and go to the save option. Here you can see this is the save option. When you click on save option, your save as dialog box will be appear. Type the name of your web page, whatever name you want to do, give your web page. Type name. I am going to give web page, just web page, and type your name of web page with extension name which is .html. आपको जो टाइप नेम देना है अपने वेब पेज का वो .html के साथ देना है. इफ़ यू डोंट गिव .html, आप .html यूज नहीं करते हो तो आपका जो नोटपैड का जो ये कोडिंग है, जो भी कुछ आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हो वो एक नॉर्मल नोटपैड फाइल बन के रह जाएगा. आपको चूँकि वेब पेज क्रिएट करना है तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा, जब भी आप नोटपैड पर वेब पेज क्रिएट करने के लिए कोडिंग करते हो तो उस फाइल को आप उसके फाइल को आप .html एक्सटेंशन के साथ सेव करोगे. तो नाउ यू कैन सी है webpage.html. नाउ आई एम गोइंग टू सेव इट. ओके, एंड यू कैन सी हियर इज द webpage.html. सेव हो गया है एंड यू कैन सी here webpage.html. and you can see, I hope ये आपका एक डॉक्यूमेंट वेब पेज का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है. नाउ लेट्स डू फर्दर कोडिंग. सो द फर्स्ट कोडिंग इज HTML. एज वी नो HTML टैग इज द फर्स्ट टैग वाइल प्रिपेयरिंग ए वेब पेज. जैसा हम जानते हैं क्या HTML टैग क्या है, ये फर्स्ट टैग है जो कि हम कोडिंग करने से पहले HTML कोडिंग करने वेब पेज के लिए जब भी कोडिंग करते हैं तो ये सबसे पहले कोडिंग होता है. Tag is the HTML tag and I am going to type HTML tag and closing HTML tag both एक साथ आप यूज कर लो and then you can use all this coding in between. Entire coding for web page done between opening HTML tag and closing HTML tag. जितनी भी कोडिंग होगी आपकी वेब पेज के लिए वो सारी कोडिंग आपकी opening HTML tag और closing HTML के tag के साथ होगी. Okay, now come to the next tag which is head tag. So come to the next tag which is head tag. Head tag. As you know, head tag includes all the information about the HTML document, such as title of the web page. So title tag is used between the opening and closing head tag. So you can see opening head tag is already written here. Now type title tag. Title, opening title tag, and then give the title of your web page. जो भी टाइटल आप अपने वेब पेज का देना चाहते हो आप दे सकते हो. लाइक माई वेब पेज, ये टाइटल आप दे सकते हो. कैन सी टाइटल एंड देन एज वी नो टाइटल टैग इज अ कंटेनर टैग, सो वी नीड टू इट नीड्स टू बी क्लोज द टाइटल टैग. एंड आफ्टर क्लोजिंग द टाइटल टैग हेड टैग शुड बी क्लोज. आपका हेड टैग भी क्लोज होना चाहिए क्योंकि आपका हेड टैग भी कंटेनर टैग है. सो आपका हेड टैग का काम हो चुका. नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज बॉडी टैग. So after using head tag, title tag, body tag always placed just after closing head tag. आपका body tag हमेशा head tag के just after यूज होता है. closing head tag के closing head tag आपका यूज होगा उसके बाद आप body tag यूज कर सकते हो. आप सिंपली एक लाइन में भी ये कोडिंग कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू आप नेक्स्ट लाइन में चाहते हो कि आपका यूज हो ये कोडिंग तो आप नेक्स्ट लाइन में भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे आप चाहो कर लो. आफ्टर क्लोजिंग द हेड टैग नाउ कम टू द नेक्स्ट टैग विच इज बॉडी टैग. बॉडी टैग. So body tag is used to display the largest tag of your web page, which include all the tags, attribute, text, images in this. आप क्या करते हैं बॉडी टैग में क्या होता है, जितने टैग्स, एट्रीब्यूट, टेक्स्ट, इमेज सारे आपके बॉडी टैग में आप इंक्लूड कर सकते हो. होता है क्या है कि आपका जो वेब पेज होता है दो सेक्शन में डिवाइड होता है. एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी सेक्शन होता है.
हेड सेक्शन का काम आप यहाँ पे कर चुके हैं। वट एवर इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, जो भी इंफॉर्मेशन वेब पेज का है वो आप हेड सेक्शन में देते हो, और जो कुछ भी आउटपुट आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हो वो सारा कुछ आपके बॉडी टैग के अंदर यूज होता है। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग आर बीजी कलर, बैकग्राउंड text, link, v-link, a-link, top margin and left margin. So now let's use all these attributes one by one. And the first one is BG color. So let me show you. First of all, I'm going to save this coding. Every time when आप कोडिंग करते हो, जितनी बार भी आप कोडिंग करते हो, आपको उस कोडिंग को सेव करनी होती है आप उस वेब पेज का आउटपुट देखने के लिए। लेट मी शो यू। अभी ये कोड सेव कर चुके हैं। नाउ लेट्स गो टू सी आउटपुट ऑफ दिस वेब पेज। यू कैन सी सिंपल आपका वाइट पेज ओपन हुआ है वेब पेज के नाम पे, जहाँ पे आप टाइटल माई वेब पेज दिए थे, आप टाइटल टैग के अंदर आप माई वेब पेज यूज़ किए थे। यू कैन सी टाइटल टैग के अंदर आप माई वेब पेज यूज़ किए थे, तो ये टाइटल आपके वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। यू कैन सी दिस इज द टाइटल बार, एंड आपका टाइटल जो आप मेंशन किए थे अपने वेब पेज के लिए वो आपका टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नाउ कम टू द, अब आपका क्या है, ये हेडिंग सेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। बॉडी सेक्शन है, मतलब आपके वेब पेज इस तो ये सेक्शन है बॉडी सेक्शन। इस सेक्शन में आप जो कुछ भी डिस्प्ले करना चाहते हो वो बॉडी टैग के अंदर यूज होगा। सो नाउ लेट्स यूज ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग, एंड द फर्स्ट वन इज बीजी कलर, इट मीन्स बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर इज यूज टू सेट द कलर ऑफ वेब पेज। आप मतलब जिस भी कलर में अपने वेब पेज को डिस्प्ले कराना चाहते हो आप वो कलर अपने बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बीजी कलर एट्रीब्यूट। लेट मी शो यू व्हाट यू हैव टू डू। आपको बॉडी टैग करना है, और एक और चीज़, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिन टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उन टैग के ओपनिंग टैग के साथ यूज होते हैं। लेकिन जैसे कि बॉडी टैग के एट्रीब्यूट है बीजी कलर, तो ये आपके बॉडी टैग के ओपनिंग टैग के साथ यूज हो रहा है। फिर कैसे टैग नेम बॉडी टैग, देन स्पेस, आपको स्पेस देना है, और फिर आपको एट्रीब्यूट नेम टाइप करना है। ये बीजी कलर आपका एट्रीब्यूट नेम है। देन टाइप इक्वल टू एंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू। बीजी कलर में आप जो भी कलर आप चाहते हो अपने वेब पेज के लिए आप वो कलर यूज कर सकते हो। Like I'm going to use pink. Let's see, I'm going to save this coding. After saving this code, you can save this file with the help of shortcut key, which is Ctrl+S, or you can save this file from here. Okay. After saving this file, go to the web page and reload this page. There are two ways to reload this page. First one is here, you have to click on this icon, reload this page, and your web page is reloaded. And second one is press F5 key, and your page will refresh. Okay, so let's reload this page, and you can see your web page color is now pink. आपका जो वेब पेज का कलर है वो पिंक हो चुका है। सो आप जो भी कलर चाहते हो बैकग्राउंड में आप वो कलर यूज कर सकते हो, और आपका वेब पेज का जो कलर है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप कोई कोडिंग करोगे उसको सेव करोगे, और सेव करने के बाद फिर आप वेब पेज पर जब जाओगे, when you go to your web page, just reload this page, एंड यू कैन सी जो भी कलर आप यूज कर रहे हो वो कलर से आपका वेब पेज का कलर चेंज हो रहा है। जो भी कलर आप यूज करते हो वो कलर चेंज हो रहा है। ओके, तो इस तरह से ये बीजी कलर का ये यूज हो गया। विद द हेल्प ऑफ बीजी कलर एट्रीब्यूट यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर वेब पेज। आप अपने वेब पेज का कलर चेंज कर सकते हो। There we go. Now come to the next attribute which is background attribute. One more thing, आप जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बीजी कलर एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड, ए लिंक, वी लिंक, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपको उनको अलग अलग करने के लिए किसी सेपरेटर लाइक कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से आप कॉमा नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट यूज स्पेस देना है और फर्दर कोडिंग करते जाना आपका। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करते हैं इक्वल टू एंड देन वैल्यू। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द पिक्चर एज द बैकग्राउंड ऑफ योर वेब पेज। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का काम क्या होता है कि आपके वेब पेज पे अगर आप कुछ पिक्चर सेट करना चाहते हो कि वेब पेज पे कलर नहीं हो, कोई पिक्चर शो हो, तो आप इस तरह से आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की हेल्प से आप कर सकते हो। तो लेट मी शो यू वन मोर थिंग। व्हेनेवर यू आप अगर आपका जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को पिक्चर सेट करने के दो तरीके, एक क्या, फर्स्ट वन, अगर आपका HTML फाइल जिस लोकेशन में हो उसी लोकेशन में पिक्चर हो तो आपको पूरा लोकेशन, आप अगर बैकग्राउंड का सिंटेक्स याद होगा आपको, तो क्या था, बैकग्राउंड इक्वल टू URL ऑफ द इमेज
बिटवीन डबल कोट के अंदर आपको URL ऑफ द इमेज, तो लोकेशन, इमेज का लोकेशन आपको बताना होता है। तो आपका क्या है, अगर आपका वेब पेज जो आप क्रिएट कर रहे हैं, HTML का जो पेज है वो और पिक्चर जो आपका एक ही लोकेशन में सेव है, तो आपको जस्ट यूज नेम ऑफ द फाइल, आपको बस फाइल नेम यूज़ करना है विथ एक्सटेंशन, दैट्स इट। लेकिन अगर किसी डिफरेंट लोकेशन में आपका इमेज फाइल सेव है तो आपको पूरी लोकेशन का पूरा URL आपको बताना होगा। लेट मी शो यू, हियर यू कैन सी देयर इज अ पिक्चर रेनबो, नेम रेनबो, एक पिक्चर है आपका, ठीक है, जो कि वेब डेस्कटॉप पे है, और आपका जो फाइल है HTML फाइल भी आपका वेब पेज है, मीन्स सेम लोकेशन पे है। तो जब इस पिक्चर को, इस रेनबो पिक्चर को आप सेट करते हो अपने वेब पेज पे, तो आपको क्या करना है, वैल्यू में बस डबल कोट के अंदर नेम लिखना है पिक्चर का, रेन वट एवर द नेम ऑफ योर फाइल, जो भी फाइल का नाम है नेम लिखना है विथ एक्सटेंशन, आपको एक्सटेंशन नेम के साथ लिखना है फाइल नेम। डबल कोट यूज हो गया, देन सेव दिस फाइल and go to your web page and reload this file, and you can see picture is set at your web page, आपका जो पिक्चर था वो वेब पेज में शो हो चुका है जो बैकग्राउंड। बट अगर आपको कोई डिफरेंट लोकेशन में कोई पिक्चर है, लाइक अगर आप किसी और दूसरे ड्राइव में कोई पिक्चर है आपका, और वहाँ से आप अपने बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हो कोई पिक्चर, लाइक अभी आपका जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, लेकिन आप चाह रहे हो किसी दूसरे ड्राइव में जाके पिक्चर सेट करना, लाइक कंप्यूटर में गए, देन D ड्राइव में गए, और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, मेरे कैसे एक पिक्चर है लिली नाम से एक पिक्चर है, आप इसको सेव करना चाहते हो डिफरेंट लोकेशन में, ये आपके कंप्यूटर के D ड्राइव में सेव है। तो इसको जब आप एज ए पिक्चर आप सेव करना चाहते हो, एज ए बैकग्राउंड आप जब सेट करना चाहते हो अपने वेब पेज पे, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसका पूरा पाथ लिखना होगा, इसका लोकेशन, लाइक आपका ये D ड्राइव में था ये फाइल, तो आप D ड्राइव यूज़ करोगे, क्लोन, देन डबल बैकस्लैश एंड देन नेम ऑफ द फाइल लिली विथ एक्सटेंशन JPG, आपको ये पूरा लोकेशन टाइप करना होगा। देन सेव दिस फाइल एंड गो टू योर वेब पेज, reload this page, and you can see the picture is set at the background of your web page, आपका वो पिक्चर सेट हो जाता है। यहाँ दो तरीके आपको बताए गए पिक्चर बैकग्राउंड सेट करने के, एक अगर सेम लोकेशन पे आपका फाइल है तो जस्ट यूज़ द नेम ऑफ फाइल, आपको बस फाइल का नाम यूज़ करना विथ एक्सटेंशन, और अगर डिफरेंट लोकेशन में अगर कोई फाइल है आपका तो उसका पूरा लोकेशन आपको यूज़ करना होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट विच इज टेक्स्ट एट्रीब्यूट। टेक्स्ट एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, आप मतलब जो भी वेब पेज पे जो भी कलर यूज करते हो, जो भी टेक्स्ट लिखते हो, उसका कलर चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल यू कैन सी आई एम टाइपिंग द टेक्स्ट वेलकम टू माय वेब पेज, ओके, ये अभी आपका टेक्स्ट है, ओके ना। तो आप अभी इसको सेव करते हैं कंटेंट को, एंड देन गो टू योर वेब पेज, आप जब इसको देखते हो तो क्या देखते हो, वेलकम टू माय पेज, डिफ़ॉल्ट कलर, बाय डिफ़ॉल्ट कलर आपके वेब पेज का टेक्स्ट का जो कलर होगा वो ऑलवेज ब्लैक होगा, वो हमेशा ब्लैक होगा। विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एट्रीब्यूट यू कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट के हेल्प से आप अपने वेब पेज पे जो कलर यूज कर रहे हो उसका कलर चेंज कर सकते हो अपने फॉन्ट का, टेक्स्ट का। सो हियर इज द टेक्स्ट एट्रीब्यूट, नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इक्वल टू साइन, देन नेम ऑफ द कलर नेम इन डबल कोड, आपको डबल कोड के अंदर कलर नेम लिखना है, लाइक आई एम गोइंग टू टाइप ब्लू, ओके, सेव दिस कोडिंग, you can say save this coding and go to your web page, reload this page, and you can see the color of the text is changed now। आप जो भी कलर यूज करते हो यहाँ पे वो कलर आपके टेक्स्ट पे जाकर वहाँ पे आपके वेब पेज पे चेंज होता है। ये आप जेड अगर आप यूज किए, आप अपने वेब पेज पे जाओ, पहले सेव करोगे फाइल को, और जब अपने वेब पेज पे जाओगे और and reload this page, and you can see color of the text is changed now, has changed now, okay। So now come to the next attribute which is a-link, v-link and link attribute। So a-link, v-link and link attribute का जो यूज है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में जब हम हाइपर लिंक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ब्रीफली समझाएंगे। ना फर्दर जो बाकी के जो एट्रीब्यूट्स वो पढ़ते हैं, विच इज टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन। So what is margin? Margin is the blank space between edge of the web page and text of text.
टेक्स्ट और एज, वेब पेज का जो एज और टेक्स्ट जो रिटर्न होता है उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस, उसको मार्जिन बोलते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ टॉप मार्जिन यू कैन सेट margin of in your on your web page. Margin on your web page. So type the name of attribute is equal to sign and the value आपका यहाँ पे जो रीड करेगा टॉप मार्जिन पिक्सल में रीड करेगा. सो लेट मी शो यू, आई एम गोइंग टू यूज 70 पिक्सल. तो अभी आप क्या देखोगे अपने वेब पेज पे कि आपका जो टेक्स्ट है ये ऊपर में एकदम बिल्कुल टॉप पे, ये अभी जो भी है लिखा हुआ है बिल्कुल टॉप पे. तो अभी आप जब आप टॉप मार्जिन यूज करते हो 70 पिक्सल, जस्ट सेव दिस फाइल, save this code and go to your web page and now reload this page and you can see ये आपका टॉप मार्जिन है, ये मार्जिन सेट हो चुका, 70 पिक्सल का मार्जिन सेट हो चुका. जो टेक्स्ट आपका बिल्कुल ऊपर टॉप पे था रिटर्न, टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट यूज करने के बाद ऊपर में टॉप मार्जिन सेट हो चुका, ब्लैंक स्पेस के बाद ही आपका वो टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है. Now come to the left margin. So with the help of left margin you can set margin, left margin आप लेफ्ट साइड में मार्जिन सेट कर सकते हो. इट इज ऑल्सो ये जो वैल्यू है ये भी पिक्सल में रीड करता है, इसमें जो भी वैल्यू होगी पिक्सल में आप ये रीड करेगा आपका ये एट्रीब्यूट. तो यहाँ पे 80 पिक्सल यूज कर रहे हैं. नाउ सेव दिस कोड, आप अपनी कोडिंग को सेव कर लो. आफ्टर सेविंग दिस कोड गो टू योर वेब पेज एंड अभी आप क्या देख रहे हो कि आपके वेब पेज पे जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल लेफ्ट अलाइन है, बिल्कुल आपके वेब पेज के लेफ्ट एज पे बिल्कुल टच कर रहा है, सट बिल्कुल टच है वो. तो जब आप इस लेफ्ट मार्जिन यूज कर चुके हैं एट्रीब्यूट, नाउ रीलोड दिस पेज एंड यू कैन सी आपका जो 80 पिक्सल था वो उतना स्पेस आपका वेब पेज के ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया गया. मार्जिन छोड़ने के बाद वो जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है. सो दिस इज द यूज ऑफ लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन. So students, I hope you understand all those tags. How can you use these tags on your web page, on your coding? So that's all for today. Further topics of this chapter will be discussed in next video. Thank you.